ऑन द पॉइंट सोचना इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू एंड अप राइटिंग फ्यूअर पॉइंट्स एंड स्कोरिंग फ्यूअर मार्क्स इन द GS पेपर. That's why it's very important to have those templates. This kind of a lesson to the government कि अगर हम नीचे हैं, अगर लेट्स से हमारा हेल्थ एजुकेशन अच्छा है बट वुमेन की डिस्पैरिटी ज्यादा है कंपेयर टू मेन, वुमेन के इंडिकेटर्स पुअर है, तो गवर्नमेंट कैन प्रायोरिटाइज देम थ्रू schemes like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. India will become less attractive economy because of these tariffs, because it will have an effect on Indian rupee also. तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा. और यही मेरा फोकस रहेगा मेन टेस्ट सीरीज जो हमारी स्टार्ट हो रही है कुछ ही दिन में. वहाँ पे 20 लेक्चर्स होंगे मेरे आंसर राइटिंग के, जहाँ पे मैं आपको इन टेम्पलेट्स को अप्लाई कर करके आपको एक्सपर्ट बना दूंगा. एंड व्हेन यू आर गिविंग नेक्स्ट ईयर्स मेंस एग्जाम, यू विल हैव मल्टीपल वेज टू थिंक while seeing the questions. Recently, the mains exam has concluded, and after the mains exam, I have been receiving a lot of messages from my students who had given mains this year, and all of them have been talking about that how various templates that I have taught in the answer writing lectures and one-to-one mentorship, they have applied in the actual exam, and that have made their life much more simpler, right? So basically in this series I'll be taking 3 questions of GS3 जो इस साल पूछे गए हैं, and I'll tell you how by using templates you can make or you can generate more points, and how templates can make your answer writing easier, right? So basically, as I have said, I have calculated at least 16 questions in all GS papers could be, or you could generate more number of points if you would have applied the templates that I have discussed in the main test series last year, right? So I'll show some of it. So सबसे पहले, and the idea is that if you see most of the toppers, they have been talking about templates, because template आप जब एग्जाम में जाते हो 8 मिनट में 7 मिनट में, तो आपको अगर आपके पास कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है, ऑन द पॉइंट सोचना इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू एंड अप राइटिंग फ्यूअर पॉइंट्स and scoring fewer marks in the GS paper. That's why it's very important to have those templates. सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन था, distinguish between the HDI and inequality adjusted HDI with special reference to India. Why is ISDI considered a better indicator of inclusive growth? पहला पार्ट डायरेक्ट है, कंपेयर करना है, कुछ नहीं, you don't have to think a lot. Second part, why is ISDI considered a better indicator of inclusive growth? Ab in the answer writing lectures, I have taught that if the keyword in the question is inclusive growth, because every year they ask one question with this keyword in, inclusive growth, तो आपको इन dimensions में सोचना है. These dimensions are reduced poverty. These are the dimensions of inclusive growth: reduced poverty, women empowerment, education and skill development, regional balance, access to basic services, employment creation, health empowerment, addressing the marginalized, and reduction in income disparities. ठीक है, तो ये डायमेंशंस है, अगर ये हो रहा है तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. ठीक है, नाउ बिकॉज वी हैव दिस कीवर्ड इन द क्वेश्चन विच इज हाउ ISDI is considered a better indicator of inclusive growth. आपको इन 9 डायमेंशंस में इन 10 डायमेंशंस में सोचना है और लिंक करना है इसको ISDI से, कि ISDI इनको कैसे प्रमोट करता है, कैसे बेटर रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, सो इन द एक्चुअल एग्जाम यू ऑलरेडी हैव 9-10 पॉइंट्स विच आर देयर इन योर माइंड कि इनकी सब हेडिंग तो यही होगी. अब मेरा काम है कि मेरे को इसको ISDI से लिंक करना है. तो डेफिनेटली आप देखो अपने आप ज्यादा पॉइंट्स जनरेट करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल रिड्यूस पॉवर्टी, तो ISDI जो है इट एक्चुअली कैप्चर्स हाउ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ इज रीचिंग द पुअर, राइट. सेकेंडली वुमेन एम्पावरमेंट, सो इट ऑल्सो मेजर्स कि जो 3 इंडिकेटर्स हैं SDI के, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, वहां पे वुमेन का कितना शेयर है, वुमेन का कितना डिस्पैरिटी है कंपेयर टू मेन. तो इट गिव्स दिस काइंड ऑफ अ लेसन टू द गवर्नमेंट कि अगर हम नीचे हैं, अगर लेट्स से हमारा हेल्थ एजुकेशन अच्छा है बट वुमेन
की डिस्पैरिटी ज्यादा है कंपेयर टू मेन, वुमेन के इंडिकेटर्स पुअर है, तो गवर्नमेंट कैन प्रायोरिटाइज देम थ्रू स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्सेट्रा और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। थर्ड इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये एक और डायमेंशन है इंक्लूसिव ग्रोथ का। सो आईएसडीआई इंश्योर्स कि कितना रूरल अर्बन गैप है, जेंडर गैप है, ठीक है, तो ऑल दैट विल, और रीजनल गैप है एजुकेशन में, सो दैट विल गिव गवर्नमेंट प्रायोरिटी कि कहाँ ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया में, एंड schemes like NEP can be unveiled. Then reduction in income disparities. So ISDI shows how much is income inequality in India, how is the wealth distributed in India, and through that data government can decide its welfare policy, its redistribution policy like PM Kisan, Manrega, etc. Then access to basic services, तो यहाँ पे भी it exposes rural urban gap, regional gaps and caste gaps, and that ensures that government can then prioritize on through schemes like Jal Jeevan scheme, Swachh Bharat scheme, Ujjwala scheme, etc. Then employment creation. So ISDI also reflects not just jobs but fair wages and social security, and then government can align that through MSME credit push, etc. Then regional balance, so state with high SDI can still have high inequality. There could be gaps between urban and rural areas, or there could be pockets of development in that state. Few cities, if you exclude few cities, its income or its per capita income will fall. So you giving that information, it helps the government and especially the state government in making more balanced policies, right? Then addressing the marginalized, which is minorities, SC, ST. So SDI also reveals that how much is the income share, how much is the, all that thing. So, ISDI can, help government prioritize with better policies. Then health also. So, ultimately ISDI also reflects ki women की health, tribals की health, बाकी जो और रीजनल लेवल पे क्या गैप्स है हेल्थ इंडिकेटर्स में। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि केरला का इट्स infant mortality rate, or I believe maternal mortality rate, has become better than US. So we have at one level we have Kerala, and then at one level we have the so-called Bimaru states where the indicators are close to the African countries. So through ISDI we can tell that how much health is there, and government can then prioritize based on seeing कि कौन से स्टेट पे और कौन से रीजन पे कहाँ पे फोकस करना है, और आयुष्मान स्कीम को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो देखो आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए अगर आपने कीवर्ड जो टेम्पलेट थी उसको यूज किया, राइट। सेकेंड इज, ये जो आपका क्वेश्चन था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली stated that left wing extremism will be eliminated by 2026. What do you understand by left wing extremism, and how are the peoples affected by it? What measures have been taken by the government to eliminate left wing extremism? तो सिमिलर क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी पूछा था, एंड मैंने अप्रोच यही बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन किसी डेवलपमेंट रिलेटेड इंसर्जेंसी का है, विच कुड बी लेफ्ट विंग, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, अर्लियर पंजाब, तो अगर कोई भी क्वेश्चन डेवलपमेंट रिलेटेड इंसर्जेंसी का है, तो while mentioning that what steps government is taking, you have to think from this approach: core, sympathizer and standby approach, right? तो if you see this approach, core, sympathizer, standby, तो basically क्या होता है, कोई भी अप्रोच जब गवर्नमेंट लेती है तो उसको कोर, सिंपैथाइजर और स्टैंड बाय अप्रोच में ब्रेक करती है। कोर मतलब जो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं उनके लिए मोस्टली गवर्नमेंट की बुलेट फॉर बुलेट की पॉलिसी होती है। देन उसके बाद सिंपैथाइजर है जो टेक्निकली आइडियोलॉजिकल लेवल पर उनको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, बट ग्राउंड पे नहीं है, राइट? दे आर नॉट फाइटिंग विद द गवर्नमेंट।
And third is standby. These are the common people who are there in that area, right? Who are technically neither with the government nor with the militants. So basically, if you talk about left wing extremism, तो core के लिए government has brought Cobra, Greyhound, right? Modernization of police station, drones, UAVs. So many such policies have been brought, and that has helped killing of multiple Naxalites in last few years. Then you have the sympathizers, which is, उसके लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, दैट बैन्स एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ नक्सलिज्म. महाराष्ट्र में अभी अर्बन नक्सल बिल आया है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो काउंटरिंग द एजेंडा थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स. यूएपीए के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आए हैं. गवर्नमेंट ने एनजीओ, वो एनजीओ जो एफसीआर है, जिनकी एफसीआर फंडिंग डुबियस थी, उनको भी काइंड ऑफ बैन किया है, उनकी फंडिंग को बैन किया है, राइट? सो बहुत सारे ऐसा मटेरियल दैट इज जस्टिफाइंग दिस, उसको भी बैन किया है. एंड थर्ड इज स्टैंड बाय अप्रोच, विच इज द कॉमन पीपल. उनके लिए गवर्नमेंट हैज ब्रॉड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, रोशनी स्कीम, राइट? गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग ऑल दैट. रोड डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे हेल्थ सेंटर बन रहे हैं, मलेरिया को काउंटर किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स आ रही हैं, राइट? एकलव्य स्कूल बन रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अप्रोच दिस आंसर. ठीक है ना? तो आपका अगर ये वाला बहुत क्लियर है, तो आपके ज्यादा डायमेंशंस भी होंगे एड्रेस, और यू विल बी एबल टू राइट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो. If you see this question, what are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? So one template which I taught in uncertain lectures was stakeholder approach. कि इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले you have to think कि इस इवेंट से रिलेटेड कौन कौन लोग हैं, right? So once you've identified that these are the people, फिर तो it's very easy. You have to just think about the impact कि उस फिनोमेना का उन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, right? For example, if you see यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कौन कौन इफेक्ट होंगे? आपके इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, वर्कर्स इफेक्ट होंगे, गवर्नमेंट इंपैक्ट होगी, स्टार्टअप इंपैक्ट होंगे, फार्मर्स इंपैक्ट होंगे, कंज्यूमर्स इंपैक्ट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंपैक्ट होंगे. ठीक है ना? तो मेजरली आपके ये 6-7 स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इंपैक्ट होंगे अगर वी मूव फ्रॉम फ्री ट्रेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म. वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट, नाउ यू थिंक अबाउट द अप्रोच. क्या क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री, pharma industry, gems and jewelry, textile industry, they will be heavily affected, right, with that tariff because they will lose their market to other countries, right? Similarly, and plus उनका इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज होगा क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इंडिया में हैं जो बहुत सारा रॉ मटेरियल यूएस से मंगाते हैं. टैरिफ लगने से वो भी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी. सेकेंडली, कंज्यूमर्स, फॉर देम ऑल्सो cost of various imported goods will increase. उनकी चॉइस कम हो जाएगी because they will have to then rely to Indian products. ठीक है? Then government policy makers के लिए it will definitely reduce taxation, competitiveness. ठीक है ना? And also trade negotiation will be difficult from them because ultimately bilateral setting में trade negotiation होना is very difficult. Then farmers, और अगर हम if we talk about farmers and agrarian sector, तो एग्री एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होगा नेगेटिवली. ठीक है? वर्कर्स और लेबरर्स के लिए जो इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी, टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गई, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, तो वहां पे ले ऑफ्स भी होंगे, तो उनकी नौकरी, उनकी वेज भी कम होगा. फिर स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी मैनी ऑफ दीज स्टार्टअप्स rely on cross border data information funding, right? तो वो भी इम्पैक्ट होगा. एंड लास्टली, ग्लोबल पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स जो इंडिया में एफडीआई करने वाले हैं, उनके लिए भी इंडिया विल बिकम लेस अट्रैक्टिव इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स, बिकॉज इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन इंडियन रूपी ऑल्सो. तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. ठीक है ना?
तो देखो ऐसे आप कितना इजीली जनरेट कर सकते हो ज्यादा पॉइंट्स अगर आपके पास प्री प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स हैं। और यही मेरा फोकस रहेगा मेन टेस्ट सीरीज जो हमारी स्टार्ट हो रही है कुछ ही दिन में। वहां पे 20 लेक्चर्स होंगे मेरे आंसर राइटिंग के, जहां पे मैं आपको इन टेम्पलेट्स को अप्लाई कर करके आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। एंड व्हेन यू आर गिविंग नेक्स्ट ईयर्स मेंस एग्जाम, यू विल हैव मल्टीपल वेज टू थिंक while seeing the questions। ठीक है ना। सो इन दिस मेन टेस्ट सीरीज राइट स्मार्ट भी है बाय डॉक्टर शिविन, मेरे 20 लेक्चर्स है आंसर राइटिंग के, लाइव इवैल्यूएशन का मेंटरशिप है और 20 टेस्ट भी है। ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th द राइट स्मार्ट एंड 22nd से पहला टेस्ट है, तो मेरे लेक्चर्स उसके बाद होंगे। बिकॉज दीज 100 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग, and it is in these 100 days you can master these templates, and then you can further apply them between prelims and mains. So this is all for today's session, and we'll be again back by applying these templates in more questions of this year's mains exam. Thank you.